Okay, welcome back to the last session. और आप सभी का स्वागत है अंतिम सेशन में। Okay, you happy क्या आप खुश हैं that this is the last session? कि ये अंतिम सभा है? It's okay, I understand. अरे कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। All right, we started off learning about 7 Hebrew words for praise. तो हम लोगों ने शुरू किया था 7 हिब्रू भाषा में स्तुति को क्या कहते हैं। The first Hebrew word for praise is yada, जो हम लोगों ने पहला देखा वो है यादा, and the second one is toda. जो तोदा है। Okay, so it is from these two words as a root meaning we get the word Judah. और इन दोनों शब्दों के मिलन से एक वर्ड बनता है जिसका हम जूडा कहते हैं। Okay, so praising him with our hands raised. उसकी आराधना करना अपने हाथों को उठाकर। The third Hebrew word for praise is hallel, और तीसरा जो शब्द है वो है हलेल, which means to celebrate, जिसका अर्थ होता है to, उत्सव मनाना, to boast. प्रदर्शन करना। Right? It's about 160 times in the Bible. और बाइबल में वो 160 बार बताया गया है। And it is the word where we get hallelujah from. और इस सब से ही हमें हालेलुया शब्द मिलता है। Okay, and my second favorite word, और मैं दूसरा सबसे पसंदीदा जो शब्द है what is it? वो क्या है? Not happy, not happy, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। not happy. Come on. और जोर से। Where's the phlegm? Yeah. Awesome. Okay. Thank you. So that means shabach means shout of praise. और सबाह का मतलब होता है प्रशंसा का शोर। Okay. The importance of shout of praise. और यह जो अब पढ़ेंगे कि प्रशंसा का जो शोर है उसका अर्थ, उसका महत्वपूर्णता क्या है। Okay. My first favorite word for praise in Hebrew तो मेरा सबसे पहला पसंदीदा शब्द हिब्रू में स्तुति के लिए है is tehillah. वो है तेहीला। Okay. Some of you are hearing something else. क्या कोई दूसरा सुन रहा है? Okay. But it's tehillah. वो तेहीला है। Okay. Some of you are like, tequila. No. आप लोग सुन रहे हैं शायद टकीला बोल रहे हैं क्या? No, 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 no. ना 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 Okay. ना। All right. Tehillah. So what does that mean? तो तेहीला का मतलब क्या होता है? It is a spontaneous song of praise. और इसका मतलब होता है लगातार Okay. स्तुति को करना, It is a spontaneous song of praise. जो लगातार परमेश्वर की स्तुति के गीत को गाना। It is also saying that your heart ये ऐसा भी कहता है कि आपका हृदय, become a library of praise. कि आपका जो जीवन है वह स्तुति का स्थान बन गया है। Okay, that's what this word tehillah means. और यह तहीला शब्द का मतलब यही होता है, That it become your heart becomes a library of praise. और आपका जो जीवन होता है वो हमेशा प्रशंसा करने के लिए तैयार रहता है। Okay, so we have a very small library back there, right? और हमारे पास एक छोटा एक पुस्तकालय है पीछे, Right? There's a library of books over there, very small one. और एक छोटा सा पुस्तकालय है वहाँ पे। So when you go to that library, अगर आप उस पुस्तकालय में जाते हैं, right, you can pick a book of any topic from there that is available. और वहाँ पे किसी भी विषय पे एक किताब आप ले सकते हैं। Yes? हाँ, And so this word is saying तो यह जो शब्द है वो यह कह रहा है that your heart becomes a library or a book of praise like that. तो आपका जो हृदय है वह एक पुस्तकालय बन जाता है उस प्रशंसा के लिए, या संग्रहालय बन जाता है उस प्रशंसा के लिए। Only then can you erupt in a spontaneous song. तभी आप जाके आपके अंदर से वो गीत उमड़ता है। Because if your heart is empty, अगर आपका हृदय खाली रहेगा, if it has nothing, if there's nothing in your heart, अगर आपके हृदय में कुछ भी ना हो, there will not be a spontaneous song that will come out of you. और कोई भी गीत आपके अंदर से उमड़ के नहीं आएगा। So in the day of trouble, तो आपके समस्याओं के दिन में, you're going through a hard time अगर आप कठिनाइयों से होकर गुजर रहे or हैं a difficult time, और एक कठिनाई से गुजर के जा रहे हैं, you will begin to panic. तो आप बहुत भयभीत होना शुरू करेंगे। Why? क्यों? Because your heart does not have a song. क्योंकि आपके हृदय में कोई गीत नहीं है।
Okay, it's the question is not if you can sing. प्रश्न है कि यह नहीं है कि आप गीत गा सकते हैं, Okay, the question is not if you are able to sing. प्रश्न ये नहीं है कि आप गीत गा सकते हैं या नहीं। Many people think that okay, I can't worship because I cannot sing. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं आराधना इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ कैसे गीत गाना है। But the question is, जो प्रश्न है वो ये है, does your heart have a song? क्या कि आपके हृदय में कोई गीत है? Are you with me? क्या मेरे साथ है? Okay, let's go to my favorite psalm, Psalm 18. और आइए मेरे पसंदीदा भजन संहिता 18 में जाएंगे। This is my favorite psalm. यह मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन है। It's a big one. It has about 50 verses. यह बहुत बड़ा है, इसका लगभग 50 पंक्तियां हैं। We are going to read everything. हम सब पढ़ेंगे इसे। No, I'm just kidding. मैं मजाक कर रहा हूं। Okay, are we there? Psalm 18. क्या हम वहाँ है भजन Okay. संहिता 18 में? So, who has a mic? किसके पास माइक है? Okay, you have a mic. Okay, so I want you to read verse 1 and 2, and then pass the mic. Okay. तो अंकित आप क्या कीजिए, भजन संहिता जो 18 है उसका पहला और दूसरा वचन पढ़िए, Check. उसके बाद माइक को पास कर दीजिए। पहला और Yeah, दूसरा। only 1 and 2, and when we pass, we are not going to read any other verse. We are going to read Psalm 18 again. Okay. तो हम कोई दूसरा पद नहीं पढ़ेंगे, दूसरा भाग नहीं पढ़ेंगे। 18 का 1 से 2 पढ़ के आप माइक को पास कीजिए। Okay. Let's go. आइए शुरू करते हैं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। 3 से धन्यवाद। 3 से Yeah, let's read Psalm 18 again. और फिर से भजन संहिता 18 पढ़ेंगे, उसका तीसरा और चौथा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। ओके, आप फिर यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे, So read the same verse again. और वही जो वचन है उसको दोबारा पढ़िए। Same. Fast. मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। Okay, thank you. So now this is what will happen. तो अब यह क्या होगा यहाँ पे? If I pass the mic to everybody in this तो room, अगर मैं सबको यह माइक दूंगा, and I told you to read Psalm 18, तो अगर मैं कहूंगा कि भजन संहिता 18 पढ़िए, we will all start from verse 1, तो हम लोग सब पहले वचन से शुरू करेंगे, which is fine. जो अच्छा है। Because verse 1, that's where we have to start. तो पहले वचन शुरू करना, यानी मैंने अगर भाई अंकित पढ़ेंगे 1 या 2, तो अगर मैं आपको माइक दूंगा तो आप पहले से 1-2 पढ़ेंगे तीसरा तक। If I ask you to just lift your eyes up a little bit and see what is there above verse 1, अगर मैं आपको कहूं कि अपने आंखों को उठाकर थोड़ा और देखिए कि क्या है ऊपर, is there something there in your Bible above verse 1? और आपके बाइबल में एक उसके पहले कुछ है। 18 जो अध्याय है उसके पहले कुछ लिखा है? Yes? हाँ, Okay, now can you read what that says? तो क्या पढ़ सकते कि वहां पे क्या लिखा है? You read it. आप पढ़िए इसको, उसके पहले क्या लिखा है? The chief musician, Okay? All right, let's say what it says. For the director of music of David, the servant of the Lord, he sang to the Lord the words of this song when the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए
जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और साउल के हाथ से बचाया था, उसने कहा। Okay, so let's look at something about David. तो आइए हम कुछ देखेंगे दाऊद के बारे में। This is the Psalm of David. यह दाऊद का साम या संगीत है। Yes? Now, tell me a little bit about David. Who was David? तो आप मुझे कुछ दाऊद के बारे में बताइएगा प्लीज, कि दाऊद कौन है। Shepherd. Thank you. वह एक चरवाहा था, भाई ने कहा। Okay, let's focus on this one for now. तो आइए इस पर थोड़ा केंद्रित होंगे कि यह शेफर्ड या चरवाहा Okay. क्या है। Now, has anybody tried to kill you? तो किसी ने कोशिश किया है आपको मारने के लिए कभी? Wonderful. I mean, not wonderful, but yeah. Anybody else? और कोई जिसको किसी ने मारने की कोशिश की हो? Have you run for your life? क्या आप बच के निकले हैं कभी? Has any dog chased you? क्या किसी कुत्ते ने आपको दौड़ाया है? Like where you fell down and you ran, and like you fell down again and you ran? जहाँ पे आप गिर गए, फिर आप उठे, फिर गिरे, फिर उठे? Has that happened to you? It's happened to me. मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है क्या? इधर हुआ है। No? Okay. So, okay, tell me, is it funny when you run for your life? तो क्या ये बहुत मजाक की बात होती है या हंसी की बात होती है कि आप जो अपने जीवन के लिए भागते हैं, बच के भागते हैं? Like, oh, I'm running for my life. मैं अपने जीवन Hey, you know, selfie. सेल्फी लेते हैं, अपने जीवन के लिए मैं भाग रहा हूँ, ऐसा कुछ। You see, David was running for his life for almost 14 years. और दाऊद अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था लगभग 14 साल तक। Samuel, prophet Samuel, anoints him as king in 1 Samuel chapter 17. पहले शामुएल के 17 अध्याय में जो शाऊल जो भविष्यवक्ता थे, उनको अभिषिक्त किया था राजा बनने के लिए। Okay, from 1 Samuel chapter 17 or 16, I'm not sure, but somewhere there. पहला समय 16-17 के इर्द गिर्द कहीं पे। And David sits on the throne only in 2 Samuel chapter 6 or 2 Samuel onwards, basically. और 2 सैमुएल के किसी एक पद में वहां पर दाऊद वह राजा बनता है और वह सिंहासन में बैठता है। And for 14 years or so, और 14 साल के तक या उसके इर्द गिर्द Saul has been trying to kill him साउल राजा उसे मारने की कोशिश करता है and his other enemies. और उसके दूसरे शत्रुओं को। His own son Absalom wanted to kill him. और उसका अपना बेटा अब्सलोम उसको मारने की कोशिश करता है। Right, and so David has been running for his life day after day, year after year from his enemies. और दाऊद अपने जीवन को बचाने के लिए अपने शत्रुओं से दिन दिन रात रात वो भागता रहता था। And so then when God has saved him from all his enemies, और तब जब परमेश्वर ने उसको उसके हर एक शत्रुओं से बचा दिया, it says David sang this song. तब जाकर दाऊद ने इस गीत को गाया। Now the reason I asked if you can tell me something about David is, और जो कारण है मैंने पूछा कि क्यों कि ये दाऊद कौन है, David was a shepherd boy. तो दाऊद एक चरवाहा लड़का था। And then David, once he starts, you know, he was also a warrior. और जो दाऊद था वो एक सैनिक भी था। Yeah, he was a warrior. वो एक सैनिक था, Okay, so first, योद्धा था। now as a shepherd, और एक चरवाहे के रूप में like in the shepherd of that region, of that land, उस प्रांत के जो चरवाहे के रूप में, he's the one who wrote Psalm 23. और वो इसी ने लिखा है भजन संहिता 23 को। Right, the Lord is my shepherd, I shall not want. और लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Right, so the shepherd of that land will take their flock और उस प्रांत का जो चरवाहा है वो अपने चराई को लेकर जाएगा। they will go deep into the mountains, far away from their home. वह पर्वतों पर जाएगा अपने घर से दूर। They would spend at least a minimum of 8 hours in the wilderness. और वह न्यूनतम 8 घंटे वह जंगलों में बिताते थे। Okay, so minimum of 8 hours. It could go up to 12 hours, 16 hours, sometimes overnight, 24 hours.
तो कम से कम 8 घंटे या फिर नहीं तो 10 घंटे 12 घंटे कभी कभी तो रात भर वो जंगल में बिताते थे। I want you to pay attention. Think with me. मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान दें और मेरे साथ सोचे। So David, as a shepherd boy, और दाऊद जो एक योद्धा था, he had a lot of time alone. वो जो चरवाहा था, उसके पास बहुत सारा समय था जो वो अकेले बिता सकता था In the wilderness only with his sheep. और अपने भेड़ों के साथ अकेले जंगल में बिता सकता था। So what did he do in those times? तो उस समय वो क्या किया करता था? He taught his heart to praise. तो वो अपने हृदय को सिखाया कि स्तुति करना कैसे Right? करते I हैं will write down. और उसको वो लिखता था, I will write down. उसको वो लिखता था। I will teach my heart to praise. मैं अपने हृदय को सिखाऊंगा स्तुति करना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Yes? Okay. And now David as a warrior, और दाऊद योद्धा के रूप में we see in 1 Samuel chapter 18, पहला समूएल उसका 18 अध्याय में हम देखते हैं it's about Goliath. और गुलायत के बारे में हम देखते हैं We all know the story. और गुलायत की कहानी को हम जानते हैं। And so David goes to Saul and says, और दाऊद साउल के पास जाता है I will fight this giant Goliath. और मैं इस बड़े गुलायत को मैं इससे लड़ूंगा। Everybody laughed at David. और सब लोगों ने दाऊद पर हंसा, उसकी हंसी उड़ाई। You're a kid. आप तुम एक बच्चे हो। The historians say David was approximately 13 or 14 years old. और जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि दाऊद 13-14 वर्ष का होगा। But then David tells Saul, तो दाऊद साउल को कहता है, when a lion or a bear attacked my sheep, अगर जब शेर या कोई भालू मेरे भेड़ों पर आक्रमण करता है, I went after it. मैं उसके पीछे गया। Okay, he just didn't stand and they said, oh, I'm sorry, the sheep is going. मैंने खड़े होकर दुख नहीं मनाया कि अरे ये तो मैं बहुत ही खेदित हूँ कि अब ये शिप जा रहा है, भेड़ा जा रहा है। The exact words is, जो सही शब्द है, David says, I held the lion by its beard. तो डेविड कहता है कि मैंने उसके दाढ़ी से पकड़ा। So how close do you have to be to a lion to hold its beard? तो शेर को के दाढ़ी को पकड़ने के लिए उसके कितने करीब आपको आना पड़ेगा? Very एकदम करीब? close. बहुत करीब। So why am I sharing all of this? Sharing all of this is, तो क्यों मैं ये सारी बातों को आपसे बता रहा हूं? as a shepherd, David trained himself to become this library of praise. तो एक चरवाहे के रूप में दाऊद ने अपने आप को सिखाया कि वह स्तुति का संग्रहालय यानी पुस्तकालय बने। And he was a warrior. और एक वो योद्धा भी था। Right? He killed a lion. He was so close to the lion. और वह जब वो शेर को मारा तो वह शेर के बहुत करीब था। And so now let us look at Psalm 18. अब देखिए अब भजन संहिता 18 को। So when a person who has been running for his life, अब एक व्यक्ति जो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है, and this person और वह व्यक्ति was a shepherd, जो चरवाहा था, in other words, he was a worshipper, जो आराधक था, right? He taught himself to praise and worship. वह अपने आप को सिखाया प्रशंसा करने का। And then we also see that he is a warrior. और हम ये भी देखते हैं कि वह एक योद्धा था। Okay, can we imagine now? अब आप कल्पना कर सकते हैं? Let's go back to imagining. तो फिर हम कल्पना करने में वापस जाएंगे। I don't think David would have written this psalm like how we just read. तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जो दाऊद ने जो ये भजन लिखा वो ऐसे ही लिखा। I don't think he would have read, I love you, O Lord, my strength. तो वो ऐसा नहीं कहा होगा कि परमेश्वर यहोवा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। The Lord is my rock, my fortress, and no, I don't think he would have read like that. मैंने ये सोचता कि वो इस प्रकार लिखा होगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा गढ़ है, मेरी ढाल है। मैं नहीं सोचता। Being in the jungle जब वो जंगल में है, as a warrior, एक योद्धा के रूप में, he would have screamed on top of his lungs. वो अपने छाती को फाड़ कर हो सकता है वो Say, चिल्ला रहा होगा। I will love the Lord, my rock, my strength. वो कहा होगा कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को एक चट्टान की तरह प्रेम करता हूँ। Right? He is my fortress. He would have screamed on top of his lungs. वो शायद हो सकता है कि चिल्ला रहा होगा कि वह मेरी ढाल है। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? And now we have a different picture to Psalm 18. अब हमारे पास एक यह भजन संहिता 18 का दूसरा
चित्र आ रहा है। So, students, सो छात्रों, it's very important sometimes we put ourselves in the character of the people who've written the Bible. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन चरित्र के जैसा कल्पना करने लगे जो बाइबल में लिखा हुआ है। Sometimes it's very important for us to read the scriptures like it was written. तो सबका कभी कभी यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार वचन को लिखा गया है वैसा हम अपने आप को कल्पना करें। Like here, you're like, what would have David gone through? What would he have done? Who was he? और जहां पर यहाँ जिस प्रकार यहाँ पे वह किस परिस्थिति से होकर गुजरा होगा, वह कौन था, वह किस घटना से होकर गुजरा था। Okay, and this is where we get the word Tehillah from, because he taught himself as a shepherd to praise and worship, that his heart was like a library of praise. और तहिला का शब्द कि उसका जो वो जो चरवाहा था और जिसका जो हृदय था वह संग्रहालय था प्रशंसा का। He could erupt in a spontaneous song. और तब उसके हृदय से वो गीत बाहर निकलते थे। So I'm coming back to the question I asked you. तो इस क्वेश्चन को जो मैंने पूछा था फिर से वापस वहीं पे आ रहा हूं। Does your heart have a song? क्या आपका के हृदय में, दिल में कोई गीत है? Okay. One of the best investments that I've done, some of my friends know this. बहुत सबसे जो बहुत अच्छा निवेश मैंने जो किया है, जो मेरे दोस्त जानते हैं, Investment जो जो निवेश करते हैं, is what my mother made me do. जो मेरी माँ ने मुझे करना सिखाया। She told me to go buy this book called Thousand Praises. तो उसने कहा, मेरी माँ ने कहा कि जाके 1000 प्रेसेस यानी 1000 स्तुतियां एक किताब है, उसको खरीद लो। So if you ever get a chance to go out to any of these Christian stores called OM Books or ELS, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि जो क्रिश्चियन बुक स्टोर है जैसे ELS या OM बुक्स, there's a small book called Thousand Praises. एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है 1000 प्रेजेस। When I bought it, it was 10 rupees. जब मैंने खरीदा था ये 10 रुपए का था। Now it may be 20 rupees. हो सकता है कि अभी ये 20 रुपए का हो। So I would encourage you to get it. मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि ये किताब जाके आप ले ले So I would read it. और उसको पढ़ें। I would read it. और मैं उसको पढ़ता था, I would read it. मैं उसको पढ़ता था, I would read it. मैं उसको पढ़ता था, And it would help me. वो मुझे मदद करता था। Right? And so, say, the Lord is my rock. He is my fortress. He is my shield. I praise you. My deliverer, I praise you. My provider, I praise you. My protector, I praise you. The bright and morning star, I praise you. I'm sorry. तो वो वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर मेरी ढाल है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर मेरा देने वाला है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर मेरी सुरक्षा देने वाला है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। वह भोर का तारा है, मैं उसकी प्रशंसा करने वाला हूँ। ऐसा लिखा गया है। Amen. आमीन। It is very important that you fill your heart with praise. और ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने हृदय को स्तुति से भरें। When your heart is full of praise, जब आपका हृदय स्तुति से भरा होता है, there is no room for MCG. और वहां पर MCG के लिए कोई जगह खाली नहीं रहती। Okay, complaining, murmuring, grumbling. कंप्लेनिंग, मर्मरिंग, ग्रम्बलिंग, शिकायत करना, कुरकुड़ाना, नाराज होना। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Okay, awesome. Let's look at 2 more words for Hebrew language and we'll close for today. और आइए हम और 2 शब्द देखेंगे इब्रानियों भाषा में और आज के समाप्ति की ओर जाएंगे। The 6th Hebrew word for praise और जो छठा इब्रानी शब्द है स्तुति का वो है is barak. बराक। Okay, it's mentioned 330 times in the Bible. और बाइबल में ये 330 बार इसका जिक्र किया गया या लिखा गया। Okay, how many times? At least 330 times. कम से कम 330 बार इसको लिखा गया है। So barak simply means to bow down before him. और बराक का जो साधारण अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है, वो है परमेश्वर के सामने झुकना। Okay, now there are 2 different I want you to look at me very quickly, please. मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखें बहुत जल्दी से। So the Hebrew word for worship, और जो इब्रानी भाषा है स्तुति के लिए, okay, worship, स्तुति आराधना के लिए, right, is the Hebrew word called shachar. और आराधना का जो इब्रानी भाषा है वो है शखा। Okay, the spelling of that is SHA, जो स्पेलिंग है वो है HACH. HACH। Okay, SHA, HACH, shachar. शखा। Okay, that means this is the Hebrew word for worship. तो यह हिब्रू भाषा है
शब्द है आराधना के लिए, It's to go completely face down before the king. और इसका मतलब होता है कि आप पूर्ण रूप से राजा के सामने दंडवत हो जाएं, Okay? Completely bow down, face down before the king. और अपना जो चेहरा है वो नीचे झुका ले, पूरी रीति से आप दंडवत हो जाएं। But Barak और बराख also means similar, एक ही जैसा है, but it is used in a more military language. और इसको एक सेना के भाषा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। So I will bow down, मैं आपके सामने झुकूंगा, but I will keep my eyes up on you. और मैं अपने आंख को उठा कर रखूंगा। Okay? Have you seen that? When you bow down, your eyes are still on the king. और जब आप राजा के सामने झुकते हैं अपने आंखों को उठाकर। So in Psalm 103, और भजन संहिता 103 में everywhere the word praise is used, जहां कहीं भी जो शब्द स्तुति का इस्तेमाल किया गया the है, Hebrew word for praise used there is barak. और जो भी जहां पे भी वह हिब्रू भाषा आती है वह भाषा है बराक। Okay, वो शब्द है बराक। Praise the Lord, O my soul. प्रेज द लॉर्ड ओ माय O my soul. यहाँ की स्तुति कर, हे मेरे मन यहाँ की स्तुति कर। Okay? Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Okay, so that's the Hebrew word for praise, the sixth one. And the final one is zamar. और अंततः जो सबसे शब्द आता है वो है जमार। Finally, there is music. तब जाके संगीत आता है। Okay, so zamar means to play or pluck the strings of an instrument. और एक वाद्य यंत्र के तारों को छेड़ना उसको कहते हैं जमार यानी संगीत। Okay, so look at Psalm 144, verse 9. 144 भजन संगीता उसका 9वां वचन आइए हम सब मिलकर देखेंगे। Psalm 144, verse 9. 144 का 9वां वचन It says, I will sing a new song to you, O God. ये कहता है कि हे परमेश्वर मैं तेरा सामने नए गीत को गाऊंगा, On a harp of 10 strings, I will sing praise to you. और 10 तार वाली बीणा को बजाकर मैं तेरी स्तुति करूंगा। Okay, so this is the only Hebrew word associated with music for praise and और worship. यही एक अकलौता शब्द है जो संगीत के बारे में बताता है। All good? Okay, so what are the 7 Hebrew words for praise? Let's go through them. तो आइए 7 जो शब्द हैं हिब्रू शब्द हैं जो स्तुति के लिए वो क्या क्या है। Okay, ready? Go. The first one is, पहला क्या है? okay, loudly, everybody, just look at me now. 1, 2, 3. First one. Okay, Dada. second one. Okay, no reducing the volume. Same volume. उसी आवाज में सबको बोलेंगे। Okay, second one. Third. Okay, fourth. Come on. Yeah. Okay, fifth one. Tehillah. Sixth, Barak and Zamar. Awesome. Well done. Okay, I think that's enough for today. तो मैं सोचता हूँ कि आज के लिए ये काफी है। You've been wonderful students. आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे Okay, thank you for listening very patiently. और बहुत ही धीरज धर के सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, thank you those who are joining us online. I'll see you tomorrow. और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद। हम आपसे कल मिलेंगे।